Ground tissue system. All the tissues except for epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. इसका like example we can use simple tissue parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These just constitute the ground tissue. We can see that parenchymatous tissue, it can be found in the different region like cortex, pericycle, pith, even in the medullary rays. These structure I will tell you where these are found and which group of tissues are called cortex region and which region is called pericycle. That means in all these region we find the parenchymatous tissues. And also in the primary stems and the roots, so that means initially the stem roots which are going to get formed, in that also we find parenchymatous cell. Later on they transform into sclerenchyma or the collenchyma. Then next is that in leaves जो ground tissue that is present, which is thin walled and it contains the chloroplast, and there it is called mesophyll. आपको पता है that is called as mesophyll. leaf में जो ground tissue है. Then vascular tissue system. Vascular tissue system means obviously those tissue which are going to help in the conduction of water, minerals and food within the plant, that is xylem and phloem. इनका arrangement कैसा है and how it is supported by other kind of tissues, that we will study here. अब देखो इसमें लिखा है that vascular system consists of complex tissue system, that is the phloem and the xylem. phloem and xylem. xylem and phloem together constitute vascular bundle. अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना, डाइकोटिलिडनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम से. अब इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हो दैट हियर इन दिस डायग्राम वन इज फ्लोएम अदर इज जाइलम. इनके बीच में एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है, लेयर ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. इसको हम कैम्बियम बोलते हैं. वाइल इट इज़ गिवन दैट इस तरह का वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ये हेल्प करता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए. इसको ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है. तो जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये कैम्बियम के सेल्स डिवाइड करेंगे. जब ये डिवाइड करेंगे तो अंदर की ओर, नीचे की ओर जो सेल्स डिवाइड करेंगे वो बनाएंगे जाइलम, और बाहर की ओर जो सेल्स डिवाइड करेंगे देट विल फॉर्म फ्लोएम. सो दिस इज हाउ सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन द प्लांट. और जिस वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, दैट काइंड ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल. इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट दिस कैम्बियम लेयर इज एब्सेंट. इसलिए आप देखो कि मोनोकॉट प्लांट में वोडी स्टेम जनरली नहीं पाई जाती है. इट इज़ सो बिकॉज सेकेंडरी टिश्यूज डू नॉट फॉर्म इन देम ड्यू टू द लैक ऑफ कैम्बियम टिश्यू या कैम्बियम लेयर. These kind of vascular bundle are called as closed vascular bundle. Now on the basis of arrangement of these vascular bundle also we just do certain classification. What is that? Let us see. When xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in alternate manner along with the radii, the arrangement is called radials. Radial and such as in root. इस तरीके का कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है. आप ये एक ही डायग्राम में देख सकते हो, रैंडमली प्रेजेंट है. एक जाइलम की लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे जाइलम लेयर इज प्रेजेंट, देन फ्लोएम इज प्रेजेंट, और इन ऑल्टरनेट इज जाइलम देन फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. सो दिस अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट विद इन द रेडियाई यानी जो रेडियस है उसके अराउंड, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल. एंड इट इज़ फाउंड इन, किस में पाया जाता है ये? दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन रूट्स. This is radial and this is found in, this is radial and this is found in roots. Then in conjoint type what happens? Vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे xylem phloem क्या है, एक साथ jointly situated है. Then that is called as a conjoint vascular bundle, in which what happens? In conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius. एंड सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स. ये स्टेम में भी पाए जाते हैं और लीव्स में भी पाए जाते हैं. द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम. जाइलम के बाहर ही फ्लोएम होगा कंजॉइंट में, आप देख सकते हो. एंड इट कैन बी फाउंड इन स्टेम एंड लीव. और जो रेडियल वाला है ये आपको मिलेगा रूट में मिलता है. तो यहाँ से यू कैन जस्ट लर्न दैट वी हैव लर्न राइट नाउ कैम्बियम, a layer which would be present between the xylem and phloem. If it would be present, then that kind of vascular bundle is called open vascular bundle, because cambium layer will lead to the formation of xylem inner side and phloem outer side.
But if this cambium layer is absent, then that kind of vascular bundle is called closed vascular bundle, because it will not allow the secondary growth. Then if the arrangement of xylem and phloem is occurring alternate to each other, that kind of arrangement is called radial arrangement. While if it is present in such a way that over the xylem phloem is present, then this is called conjoint vascular bundle. In this conjoint vascular bundle, it can be open or the closed. If the cambium is present, conjoint open vascular bundle, and if it is closed, conjoint closed vascular bundle would be there. और इसमें हमेशा क्या होता है, दैट जाइलम के ऊपर ही फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा. एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. अब आपको एक स्टेम दे दी गई है, एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ डाइकोटिलेडोनस प्लांट और द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, लेट अस सी दैट. सबसे पहले किसी भी आप जो स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसमें सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी उसको एपिब्लेमा बोलते हैं. अब उसके नीचे वहाँ पे क्या होगा, रूट हेयर्स हो सकते हैं, क्यूटिकल हो सकता है. देन उसके नीचे जो टिश्यूज़ आएंगे वो कॉर्टेक्स रीजन होगा. कॉर्टेक्स रीजन में जनरली थिन वॉल्ड पैरेन्काइमटस सेल प्रेजेंट होते हैं, बट उसको रीजन को नाम दे दी गया है कॉर्टेक्स, बट इट वुड बी हैविंग थिन वॉल्ड पैरेन्काइमटस सेल. अब बच्चों आपको मोनोकॉट के फीचर पढ़ने तो बस आप यहाँ से देख लोगे. एपिब्लेमा यानी कि जो एपिडर्मिस है उसमें रूट हेयर्स, उसके एक्सटेंशंस को रूट हेयर बोल देंगे. इसके नीचे जो थिन वॉल्ड लेयर्स होंगी पैरेन्काइमटस सेल की, पैच है पूरा, इसको हम कॉर्टेक्स बोल देंगे. नाउ इसके नीचे फिर आफ्टर कॉर्टेक्स देयर वुड बी अंदर रो ऑफ द सेल और द लेयर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. ठीक है, एंडोडर्मिस इज जनरली सिंगल लेयर. इट इज़ सिंगल लेयर. बैरल शेप मीन्स दिस काइंड ऑफ, जैसे बैरल होता है ना इस शेप का, इस शेप के रहेंगे हमेशा. जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आपको एंडोडर्मिस ऐसे बनाना होगा. दिस इज कॉल्ड बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. कॉर्टेक्स में आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख सकता है, यानी सेल के बीच का स्पेस, बट एंडोडर्मिस में नहीं मिलेगा. और ये along the tangential as well as radial walls of endodermal cells have deposition of water impermeable waxy material suberin. ये कैस्पेरिन स्ट्रिप, इसको याद रखिएगा बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट चैप्टर ऑल्सो. इनमें एक ऐसे केमिकल का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर को इम्पर्मेबल होता है, वाटर को मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, और वैक्सी लेयर होती है कैस्पेरियन. ये सुबेरिन केमिकल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और इस स्ट्रिप को, इस लेयर को कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं. अब अगर हम एंडोडर्मिस के बाद देखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमटस सेल्स आ जाएंगे जिसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं. आपकी जो आया है पैरेन्काइमा वो थिक वॉल्ड है, दैट इज़ द पेरिसाइकिल. यहाँ पे अब हमारा पेरिसाइकिल आ गया है. अब इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स ओनली. यानी कि जो लेटरल रूट्स बनेंगी और वैस्कुलर कैम्बियम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पेरिसाइकिल से ही स्टार्ट होती है. नाउ हाउ डज इट अकर. फिर सेंटर पे जो आप रीजन देखोगे वो सेंटर का रीजन पिथ होता है. पिथ में भी आपको पैरेन्काइमटस सेल्स दिखेंगे. देन लेट अस सी व्हाट इज प्रेजेंट आफ्टर दैट.